ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दो कि मेरा आवाज ठीक से सुन पा रहे हो या नहीं, एंड द स्क्रीन इज विजिबल और नॉट. जस्ट टेल मी if everything is fine or is there any problem. Just hang on for a moment, let me just turn on the mic. Yeah. Okay. सो हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि फिलहाल जो हमारा सुपर कोचिंग है वो एक लाइक अपॉर्चुनिटी लाया है बच्चों के लिए. जो बच्चे यूजुअली सोच रहे हैं कि 2024 का जो CSIR नेट होने वाला है जून में, उसके लिए प्रिपरेशन लेंगे. सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट, that the whole course, which costs 33,999, is now available at a price of 11,665. So basically, all those students who are thinking of joining a coaching institute but was postponing this plan due to the cost and this things. So now for them, it's the like time to join the coaching institute and be a part of the super coaching family. So let's do the success together. That's what we feel. So yeah, all you have to do to avail this offer is to use the promo code, which is my name, SOURAV, and by using this promo code you can avail this offer of this discount, like this course, which is available at 11,665. So it's a limited time offer, so you have to hurry up for that and just join super coaching and let's study together. Okay, so in today's class, basically we're going to be talking about few questions. So the first question I'm going to write is, okay, so let me tell you about the density of states in Fermi gases and free electron gases, and let's talk about that basically. So we know that if you're talking about the density of states, so for free electron gas, for free electron gas, we know that E is actually equals to E square divided by twice of M. That is actually is equals to H cut square K square divided by twice of M. This thing is actually known to us. Now, if I just go to write down the density of states, then I know G of K dk is basically equals to the degeneracy factor, which is, if I'm talking about electron, it is 2 due to the spin, and then L divided by 2 pi to the power of the dimension S or something, whatever you call it, or the dimension is very important basically in this case. So L by 2 pi to the power of F into d to the power of F into K. That's all I know. So where F is the degrees of freedom. Now, if I'm talking about in 3D, if I'm talking about 3D, then of course it will become equals to G of K dk. That will be equals to 2 into L cube by 8 pi cube into 4 pi K square dk. Now from this I know, if I just ask you to do a little bit of more calculation, then you will get to see that dE would be actually equals to h cut square by 2m 2k dk. H cut square divided by 2m 2k dk. That's one thing I know. So and of course the value of k is also necessary. So the value of k is actually equals to 2me by h cut square root over of 2me divided by h cut square. That's also necessary. So after that, I can go straight away this point that g of k dk is this. That implies g of e dE would become equals to, this is L cube by 4 pi cube, L cube
divided by 4 pi cube. 4 pi is there. Okay, you just check this out. That L cube, okay, 4 into 2 is 8. 8 cancels out. 1 pi will cancel 1 pi. So L cube by pi square. L cube by pi square. L cube by pi square. K square dk. K square is basically equals to 2me by h cut square. Or I know that it's k dk can be written as like this. K dk can be written as like 2m be by h cut square, and k can be written as root over of 2me divided by h cut square, and I have this k dk sort of thing. So k dk is h cut square by 2m into 2k dk. This 2 cancel out. M into de by h cut square. K dk is equals to m into de by h cut square. So m into de divided by h cut square. Now you see, from here I have a m here and I have an m here also. So this m into root m is equals to m to the power of 3 by 2. Here I have h cut square to the power of 3 by 2. If I can multiply 2 in the numerator and in the denominator, I'm going to get 2 into root 2 is 2 to the power of 3 by 2. So L cube by 2 pi square, L cube by 2 pi square, then 2m e by h cut square. You see, 2m e, not e. It will simply be 2m by h cut square. 2m by h cut square. 2m by h cut square to the power of 3 by 2 root e d. Root e into d. So that's what my g of e d is. That's what my g of e d is. So I think it's not that tough to appreciate this factor. It's not that tough. If I'm talking about a three-dimensional free electron gas, it should look like this. Okay. अब अगर ये चीज यहाँ तक आ गया है तो इसके बाद तुम लोग निकाल सकते हो. हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल दिया है. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने के बाद और कुछ भी यूजुअली रहता नहीं है. उसके बाद बहुत ही आसान है. Like you can see that's 2 into L by 2 pi to the power of f d to the power of f k. So basically 4 pi k square dk in 3 dimension. It's L cube by 8 pi cube. और यहाँ पे 2 था तो ये 2 हो गया. तो 4 into 2 is 8. 8 it cancel. pi से pi square तो L cube by pi square. एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है रूट ओवर ऑफ 2m e के एक ले लो. k dk is equals to basically m de by h cut square. m d by h cut square, and this is k, that is root over 2m by h cut square. So 2m by h cut square, and this is 2m by h cut square. 2m by h cut square divided 3 by 2 root e d and L cube by 2 pi square. Fine. This thing has been taken care of. So this is my density of states. Now I wish to get the total number of electrons. So I know that if I'm talking about electrons, I'm considering electrons, so I have to take the Fermi-Dirac statistics. Fermi-Dirac statistics को हम लोग को लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग electrons के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब हम लोग electrons के बारे में बात करेंगे तो in that case जो statistics follow होगा, because electrons are fermions, that will be Fermi-Dirac statistics. Fermi-Dirac statistics में एक energy level जो जिसका energy E है, that energy level is actually filled by an electron or not, is given by some distribution function. Okay, and energy level is actually filled by some electron or not is given by some distribution function, and the distribution function goes like this way. Fermi distribution function. And energy level with energy E is filled by an electron. The probability that, we should write the probability that an energy level with energy E is filled by an electron is given by the Fermi distribution function f of E, that is actually equals to 1 divided by
exponential of E minus EF divided by kBt, E minus EF divided by kBt minus 1. That's all I can do. For this is the Fermi distribution function. Okay, E minus EF divided by kBt negative of 1. That's all you can do. अब यहाँ पे तुम लोग को देखना है कि कब ये एनर्जी स्टेट फिल हो सकता है, कब ये एनर्जी स्टेट फिल नहीं होगा. दैट थिंग यू हैव टू डिसाइड. दैट्स नॉट इन माय हैंड. सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जिस टेम्परेचर में यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन फील्ड है या नहीं है उसके बारे में कंसर्न है. दैट टेम्परेचर इज 0 केल्विन. तो 0 केल्विन टेम्परेचर में वेदर इट इज फील्ड और नॉट, आई एम वेरी मच कंसर्न. तो 0 केल्विन टेम्परेचर में अगर हम लोग देखेंगे तो 0 केल्विन टेम्परेचर में तुम यहाँ पे टी का वैल्यू 0 पुट करके देखो ये फंक्शन का वैल्यू क्या है. Just tell me what is the probability you are getting if you put t equals to 0 here. सारा आंसर तुम्हारे इसमें आ जाएगा. Just t equal to 0 पुट करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका. What happened for t equal to 0 and अगर हमारा जो एनर्जी है वो एनर्जी ग्रेटर देन EF है तो what will happen? ये एक्चुअली क्लास होगा फॉर fermions. So at t equal to 0 Kelvin एक्चुअली ये म्यू होता है. t equal to 0 में ये म्यू EF हो जाता है. दैट म्यू इज द केमिकल फोर्स. लाइक t equal to 0 Kelvin फॉर ऑल E ग्रेटर देन EF. अगर t equal to 0 Kelvin है तो ये 1/0 मतलब ऑलरेडी इन्फिनिटी होके बैठा है. अब अगर ये कैपिटल E EF से बड़ा है तो ये प्लस इन्फिनिटी होगा. अगर ये प्लस इन्फिनिटी है तो क्या होगा, e टू द पावर ऑफ प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी, तो 1/infinity इज 0. t equal to 0 for all E greater than EF, हमारा f of E equal to 0. At t equal to 0 Kelvin for all E less than EF, हमारे पास क्या है, ये जो फॉर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. अगर देखो E अगर EF से छोटा है, t 0 केल्विन है मतलब ये ऑलरेडी इन्फिनिटी है. अगर E EF से छोटा है तो ये माइनस इन्फिनिटी है, तो e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज 0. तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1. तो f of E इज 1. इससे क्या मिलता है तुम्हें, therefore all the states with energy E less than EF is filled with electrons or is occupied by electrons, is filled with electrons, and all the levels with E greater than EF are empty at t equal to 0 Kelvin. ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग निकालने के लिए जाए तो हम लोग क्या करेंगे, n दैट शुड बी इक्वल्स टू माय डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इंटीग्रेशन. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मतलब g ऑफ E डी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी. एक सेट में कितना डेंसिटी है वो तो हमने निकाली, इसके बाद है प्रोबेबिलिटी दैट इज एफ ऑफ ई. दैट्स ऑल. और इसको कहां से इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम ई इक्वल टू द होल रेंज ऑफ एनर्जी. बट सर सिर्फ ई इक्वल टू 0 टू EF तक ही फील्ड है, बाकी के सारे एनर्जी तो खाली है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पे इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वहां पे एफ ऑफ ई 0 हो जाए. तो फाइन, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बेटा देखो यहाँ पे क्या मिल जाना चाहिए तुम्हें. एफ ऑफ ई का वैल्यू तुम्हारा 0 टू EF में क्या है, 1 है. ठीक है. अगर इसमें ये 1 है, अगर हम लोग बोले कि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 0 टू इन्फिनिटी कर सकते थे, बट बाद में तुम लोग दिखा सकते कि ये 0 टू होना चाहिए. फाइन. तो अगर इफ आई से दैट दिस इज एक्चुअली योर एफ ऑफ ई equals to 1 in this range, so it will just becoming your g of E d. तो integration 0 to EF, that's my Fermi energy. लाइक 0 केल्विन टेम्परेचर में जो हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल होता है उसको ही फर्मी एनर्जी कहा जाता है. तो
वो चीज अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जी ऑफ ए का वैल्यू है एल क्यूब बाई टू पाई स्क्वायर टू एम बाई एच स्क्वायर टू द पावर 3/2 रूट डी। एल क्यूब बाई टू पाई स्क्वायर टू एम बाई एच स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 रूट ई डी। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो ये पूरा का पूरा चीज बाहर आ जाएगा, मतलब एल क्यूब डिवाइडेड बाई टू पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे टू पाई बाई एच स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 भी बाहर रहेगा, बड़ी अच्छी बात है सर। और यहाँ पे रूट ई डी टू द पावर ऑफ हाफ, तो हाफ प्लस वन दैट्स 3/2 बाई 3/2, तो यहाँ पे जब 3/2 होगा तो 2/3 इंटू ई टू द पावर ऑफ 3/2, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ई एफ टू द पावर ऑफ 3/2, ये हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, इस टू से इस टू को काट दो और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर। सो देयरफॉर आई कैन राइट ई एफ इज एक्चुअली इक्वल्स टू, टू कैंसल्स आउट, 3 पाई स्क्वायर एन बाई एल क्यूब, फाइन, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m टू द पावर ऑफ 3/2, और यहाँ पे है 3 पाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे n बाई एल क्यूब तुम्हारा आएगा, मैं उसको ले रहा हूँ स्मॉल n, दैट इज इक्वल्स टू n बाई एल क्यूब विच इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो दैट इज नंबर डेंसिटी 3 पाई स्क्वायर स्मॉल n, ये आ रहा है, दैट इज ई एफ टू द पावर ऑफ 3/2, तो इसका टू द पावर ऑफ 2/3 कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा ये चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, दैट्स ऑल। सो ई एफ जो फर्मी एनर्जी होगा इन 3D, दैट इज h कट स्क्वायर बाई 2m इंटू 3 पाई स्क्वायर n टू द पावर ऑफ 2/3, दैट्स ऑल। तो ये अगर तुम्हारा फर्मी एनर्जी है तो तुम्हारा एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ प्रोपोर्शनल था, ई एफ टू द पावर ऑफ 3/2 के साथ था, और ये तुम्हारा एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है। That is the formula for average number of electron, that is L cube divided by 2 pi square, um, L cube by 2 pi square into rather L cube by 3 pi square 2 pi by h square to the power of 3/2 df to the power of 3/2. That's basically my average number of electrons. Now if I do ask you about the average number of, what is the average energy, if I ask you average energy, how will you find out the average energy, बताओ बच्चों। अगर मैं तुमसे पूछूं एवरेज एनर्जी कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे एवरेज एनर्जी, बेटा एवरेज एनर्जी निकालने के लिए जो करना चाहिए वो है इंटीग्रेशन करूंगा सर जी ऑफ ई डी ई, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रहेगा तुम्हारा ई, जो तुम्हारा एनर्जी है, इनटू एफ ऑफ ई, वो एनर्जी फील्ड है या नहीं है, दैट थिंग, प्रोबेबिलिटी दैट इफ द एनर्जी इज फील्ड और नॉट। सो व्हाट इज द एवरेज एनर्जी विल गेट, तो यहाँ से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू ई एफ तक, तो 0 टू ई एफ के बीच में बाकी की बाकी जगह पे तो एफ ऑफ ई 0 हो जा रहा है, तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर ना हम लोग एवरेज एनर्जी निकालते हैं, तो 0 टू ई एफ जी ऑफ ई डी ई इंटू एफ ऑफ ई, तो एफ ऑफ ई तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो चीज़ है सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा ई आएगा, मतलब यहाँ पे जी ऑफ ई मतलब एल क्यूब बाई 2 पाई स्क्वायर 2 पाई बाई एच का स्क्वायर 3/2 एल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर इंटू एच 2 पाई बाई एच का स्क्वायर टू द पावर 3/2 2 पाई बाई एच का स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 रूट ई डी मीन्स ई टू द पावर ऑफ रूट, और यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो ई टू द पावर ऑफ 3/2 इंटू डी, ई एवरेज एट 0 केल्विन। अच्छा एट 0 केल्विन टेम्परेचर एफ ऑफ ई तुम लोग को पता है 1 होता है फॉर एनर्जी लेस देन ई एफ, 0 होता है फॉर एनर्जी ग्रेटर देन ई एफ, ये चीज मेरे को पता है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना 0 टू ई एफ तक, क्या देगा ये तुम्हें, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड मी ई टू द पावर ऑफ 5/2, इजंट इट, देख एल क्यूब बाई 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा एवरेज एनर्जी दिस इज द एनर्जी, इसको 1/n से डिवाइड भी करना है, 1 बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड भी करना है, दैट इज एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन।
टोटल नंबर ऑफ एन से डिवाइड भी करना, तो एल क्यूब बाई 2 पाई स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है 2 पाई/h² टू द पावर ऑफ 3/2 भी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा e टू द पावर ऑफ 3/2 d दैट इज e टू द पावर ऑफ 5/2/5/2 मतलब 2/5 into e टू द पावर ऑफ ef फॉर्मेट टू द पावर ऑफ 5/2। सही है भाई यहाँ पे, तो देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई स्क्वायर आ जाएगा, एल क्यूब बाई 5 पाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हम लोग को एक चीज तो पता था कि n का वैल्यू है एल क्यूब बाई 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई/h² टू द पावर ऑफ 3/2, 2/3 टू द ef टू द पावर ऑफ 3/2 है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दे, n का उस वैल्यू को पुट कर दे, यहाँ पे ef टू द पावर ऑफ 3/2 है हमारे पास, ef टू द पावर ऑफ 3/2 है हमारे पास, एल क्यूब बाई 2 पाई स्क्वायर है या उसको करना, अच्छा हमें चाहिए एल क्यूब बाई 3 पाई स्क्वायर 2 पाई/h² टू द पावर 3/2। अच्छा एल क्यूब है हमारे पास, 3 लगा लेंगे तो 1/n लिख रहे हैं इसको, एल क्यूब बाई 3 पाई स्क्वायर 2 पाई/h² टू द पावर ऑफ 3/2, तो यहाँ पे 3 लगा लेंगे, 103 मल्टीप्लाई करना, उसको बाहर रख रहे हैं, ef टू द पावर ऑफ 3/2 विद इन ब्रैकेट यहाँ पे 3/5 इंटू ef। अब जरा बताना मुझे कि ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा n है, तो इस n से ये n कट जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3/5 इंटू Fermi energy, that is the average energy per electron at 0 Kelvin temperature. What's the value of this? This is the average energy per electron at 0 Kelvin temperature. This is the average energy per electron at 0 Kelvin temperature. It's very, very important. This is the average energy per electron at 0 Kelvin temperature. This is actually average energy per electron at 0 Kelvin temperature. Average energy per electron at 0 Kelvin temperature in 3D. Average energy per electron in 0 Kelvin temperature in 3D. ये है तुम्हारा ये एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर एवरेज एनर्जी मिल गया, दूसरी बात जो तुम्हें यहाँ पे देखना है वो है कि फार्मी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। हमें पता है कि जो तुम्हारा रेडियस ऑफ फार्मी स्फेयर इन 3D, so it will be equals to is kf, जहाँ पे हमें पता है कि ef h² kf² divided by 2m, that's all I know, h² kf² divided by 2m। अब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि ef कितना है भाई, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाले थे, h² by 2m 3 पाई स्क्वायर स्मॉल n टू द पावर ऑफ 2/3, h² divided by 2m into 3 pi square small n to the power of 2/3। फाइन। अब यहाँ पे एक काम करो, h² by 2m h² by 2m काट दो, तो kf equals to root over of this, तो 3 pi square small n to the power of 1/3, तो this should be kf, यहाँ से मिल जा रहा है हमें 3 pi square small n to the power of 1/3, तो ये हमें यहाँ से मिल जा रहा है kf equals to 3 pi square small n to the power of 1/3। और अगर ये हमें मिल गया है तो बाकी की चीज़ तो डिफाइन करना बहुत ही आसान है, लाइक फार्मी मोमेंटम एंड वो सब चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, फार्मी मोमेंटम एंड फार्मी ये तो हो गया, फार्मी मोमेंटम फार्मी टेम्परेचर, दोस आर द थिंग्स यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, वो बिल्कुल भी टफ नहीं, दैट यू कैन डू। This k is also known as radius of the Fermi sphere, also known as Fermi wave vector, Fermi wave vector। अच्छा फार्मी मोमेंटम अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग pf नाम देते हैं, दैट इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू m into vf
या तुम इसको नाम दे सकते हो 2MEF, because EF equals to P square by 2M, तो 2MEF हो जाएगा. Fermi velocity, from there you can get by momentum by mass, and Fermi velocity अगर पूछा जाए तो लिख देना PF divided by M, that is actually given by your VF, and lastly Fermi temperature. ये तुम्हारा आ जाएगा TF, that is EF by kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है. अब ये हो जाने के बाद अगर हम लोग कर रहे हैं, ये था हमारा 3 डायमेंशन में. ठीक है. अब अगर हम लोग करें 2 डायमेंशन में क्या होगा, तो दैट थिंग वी आल्सो कैन डू. अगर हम लोग 2D की बात करें भाई देख, अगर हम लोग 2 डायमेंशन की बात करें तो सेम चीज आने वाला है, क्योंकि हमें पता है 2D के लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा नहीं है. G ऑफ K डी के 2 into L by 2 pi to the power of 2 d2k, जो बन जाएगा 2 into L by 2 pi to the power of 2 into 2 pi k d k. That's all I know. अब हमें यहाँ पे जो चीज ध्यान लगाना है, that is P equals to h cut k is always possible, but E is equals to P square by 2m for electron, that is h cut square k square by 2m. Fine. h cut square k square by 2m. Therefore DE is equals to, हमारे यहाँ पे आ जाएगा h cut square divided by m k dk, and k का वैल्यू अगर देखा जाए तो 2m by h cut square का रूट ओवर. सो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा एक फॉर्मूला है, दैट इज 2 into L square divided by 4 pi square, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 pi k dk को. 2 pi k को वैल्यू लिखेंगे, देखो k dk हमारे यहाँ से आ जाएगा m d e h cut square. अब देख लो यहाँ से क्या क्या चीजें कट रहे हैं. 2 into 2 equals to 4, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से एक पाई कट जाएगा, तो L square divided by पाई into हम लोग लिख सकते हैं m by h cut square into d square into d. ये हमारा g of d है. अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई साहब what is the total number of electrons, total number of electrons at 0 Kelvin temperature, तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल M, that is actually given by integration 0 to EF 0 Kelvin temperature total number of electron, तो G of E DE into F of E. 0 Kelvin temperature में 0 to F के बीच में हमारा F of E, बाकी क्योंकि ऊपर के स्टेट्स तो खाली है, वहां पे F of E 0, तो सिर्फ जहां पे F of E नॉन जीरो है उस वाले को कंसीडर करेंगे. बेसिकली ये 0 to infinity होता है ये इंटीग्रेशन, बट ओनली 0 to F के बीच में ही F का वैल्यू 1 होता है, बाकी जगह पे हर जगह पे F of E 0 हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ ये वाला एक पार्ट हम लेते हैं. तो 0 to EF यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा L स्क्वायर बाई पाई ml स्क्वायर बाई पाई h कट स्क्वायर, ml स्क्वायर बाई पाई h कट स्क्वायर. हमारे पास DE है सिर्फ, तो ये हो जाएगा m L स्क्वायर बाई पाई h कट स्क्वायर इनटू फर्मी एनर्जी, जिसको हम लोग ठीक ठाक से अगर लिखे तो EF आ जाएगा हमारा पाई h कट स्क्वायर कैपिटल N बाई L स्क्वायर स्मॉल n, पाई h कट स्क्वायर कैपिटल N बाई L स्क्वायर. ठीक है, नीचे 1 बाई m.
दैट्स व्हाई। तो ये आ रहा है अब n/l² इज बेसिकली योर स्मॉल n विच इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसको हम लिखेंगे स्मॉल n πh²/n, स्मॉल n πh² डिवाइडेड बाई n। थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं h²/2m, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो, 2πn ऐसे लिख सकते हैं, h²/2m into 2πn। By this way also I can write। जैसे ही अब हमारा फर्मी एनर्जी आ गया है तो यहाँ से हम लोग टोटल नंबर ऑफ वो निकाल लिए हैं। ये हमारा क्या है, फर्मी एनर्जी तो हमने पहले ही निकाल लिया था भाई, ये हमारा फर्मी एनर्जी है। तो फर्मी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ, इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी दैट वी हैव फाउंड आउट। तो अगर फर्मी एनर्जी नंबर डेंसिटी टर्म्स में आ गया है तो दूसरी बात यहाँ पे जो चीज़ें हमें देखना है दैट इज एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन टेम्परेचर। एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन at 0 Kelvin temperature in 2D, 2D की बात हो रहा है। तो सर इलेक्ट्रॉन का एवरेज एनर्जी एट 0 केल्विन होना चाहिए 0 to EF G of E F of E DE, एक्स्ट्रा एक E रहेगा सर। हालांकि G of E तो सबको पता है, इसके लिए क्या आता है ml² by πh² DE, ml² by πh² E into DE हो जाएगा। तो सर यहाँ पे E into D मतलब E²/2, तो ml² by 2πh², यहाँ पे E²/2 मतलब EF फर्मी एनर्जी का स्क्वायर। दूसरी बात यहाँ पे एक 1/n भी रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो 1/n तो देना ही पड़ेगा, 1/n। तो यहाँ पे भी तुम्हारा रहेगा 1/n। अब तुम जरा n का एक्सप्रेशन यहाँ से देख लो, n का एक्सप्रेशन है ml² by πh² EF, ml² by πh², यहाँ से अगर EF ले लें हम 1/n, ml² by πh², यहाँ से EF अगर ले रहे हैं तो क्या रह जा रहा है, एक एक्स्ट्रा EF डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा n है तो n कट जाएगा तो ओनली EF/2 आएगा, दैट्स द एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल एनर्जी पूछा जाए तो कैपिटल N EF/2 कह देना। यहाँ पे भी अगर टोटल एनर्जी पूछा जाए, ये तो एवरेज है, E टोटल अगर पूछा जाए तो 3NEF/5 कह देना, कैपिटल N मल्टीप्लाई कर देना उसके साथ। ठीक है भाई। अच्छा ये एक हो गया। अब इसके बाद देख हम लोग हाँ, रेडियस ऑफ द फर्मी सर्कल, रेडियस ऑफ द फर्मी सर्कल। सर आपने सर्कल क्यों बोला बेटा, सर्कल इज द सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इन 2D। सो इन 2D 3D में स्फीयर था, तो क्या होगा सर, रेडियस ऑफ द फर्मी सर्कल क्या हो जाएगा, इज माई KF, जहाँ पे EF इज इक्वल्स टू h² KF² डिवाइडेड बाई 2m। तो सर हमारा जो KF आ रहा है वो होगा 2m EF/h² का रूट ओवर, 2m EF/h² का रूट ओवर। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ पे
निकाला था। ईएफ का वैल्यू कितना आता है? अच्छा एक सेकेंड, यहाँ से इतना कुछ ना करके why don't we strictly put the value of EF here? 2D में हमारा EF कितना आता है भाई? 2MEF by h cut square रूट ओवर ऑफ 2MEF by h cut square। ऐसे ऐसे लिख सकते हो KF 2MEF by h cut square। बट यहाँ से हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं कि EF का जो वैल्यू हमारा आया था सर, h cut square by 2m into 2 pi n square, that is h cut square kf square by 2m, है ना? देखो अगर तुम्हारे यहाँ से 2m, तो हमारा kf स्क्वायर आ रहा है, kf आ जाएगा हमारा रूट ओवर ऑफ 2 पाई n। The radius of the Fermi sphere will become equals to root over of 2 pi n। That's a very important task कि what is the radius of the Fermi sphere, वो होता है 2 pi n। ये ध्यान में रखना। k actually will be equals to root over of 2 pi n। root over 2 pi smaller number density। This is the radius of the Fermi circle which is my Fermi wave vector। इसको हम लोग Fermi wave vector भी कहते हैं। ये हमारा Fermi wave vector भी है। बाकी सारी चीजें तुम लोग निकाल ही लोगे। You can find out the value of Fermi momentum 2MEF। You can find out the value of Fermi velocity PF by mass of an electron। You can find out the Fermi temperature EF divided by kV। By this way you can find out all these sort of things। ठीक है भाई, Fermi momentum, Fermi velocity, Fermi temperature, ये सब चीजें तुम लोग निकाल लोगे यहाँ पे। अब बचा रह गया है 1D। 1D के लिए कैसे करेंगे? देखना, फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1D, बहुत अच्छी बात है सर। G ऑफ K डी के तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू एल बाई 2 पाई टू द पावर ऑफ 1। सिंपली डी के हमें पता है कि E जो होगा यहाँ पे दैट इज पी स्क्वायर बाई 2m, दैट इज एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। बोसॉन्स के लिए होता है P पी सी, दैट इज एच कट के सी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। तो के कैंसिल होके फाइनली एच कट इंटू ओमेगा ये आता है। बोसॉन्स के लिए ई अलग है। फाइन, तो एच कट का के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। बेसिकली बोसॉन्स के लिए अगर हम लोग एक्वास्टिक फोनॉन ले रहे हैं तो उसकी बात करते हैं। एच कट का के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो यहाँ पे हमारा जो डी ई रहेगा दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इनटू के डी के। और हमारा जो ई का वैल्यू आएगा दैट इज रूट ओवर ऑफ, सॉरी ई बोल रहा हूँ कि जो के का वैल्यू आएगा दैट इज रूट ओवर ऑफ 2m बाई एच कट स्क्वायर। फाइन, ये हो गया 2 इंटू एल बाई 2 पाई। डीके को लिख सकता हूँ, डीके को क्या लिखूं भाई? एम डी ई बाई एच कट स्क्वायर बाई के। एम डी ई बाई के एच कट स्क्वायर, के को लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 2m e बाई एच कट स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर। फाइन, 2 से 2 कट जाएगा, एल बाई पाई। यहाँ पे एच कट स्क्वायर है, इसको इससे काटूंगा तो रूट ओवर एच कट स्क्वायर, तो 2m एच कट स्क्वायर इंटू रूट ही आ जाएगा। ठीक है, 2m एच कट स्क्वायर इंटू रूट ई आ जाएगा, है ना? फाइन,
जहां से मैं एच कट स्क्वायर को बाहर ले सकता हूँ, पाई एच कट लिख सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2m, रूट एम से एम काट दे रहा हूँ, रूट ओवर ऑफ एम ऊपर रहेगा, नीचे है हमारा रूट 2 और रूट ओवर ऑफ m/2। यहाँ पे e⁻⁻⁻ इंटू डी आ जाएगा, दैट्स माय g ऑफ के डी के। अब अगर यहाँ पे तेरा g ऑफ के डी के हो जाता है तो भाई टोटल m निकाल ले, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ई एफ g ऑफ ई डी ई, ये जो है ये हमारा है g ऑफ ई डी, ठीक है, g ऑफ ई डी क्योंकि वेरिएबल चेंज कर दिया है, f ऑफ ई। अब एफ ऑफ ई 1 होता है 0 टू एफ में, तो सिर्फ g ऑफ ई डी का वैल्यू लिख के इंटीग्रेशन कर दो, l बाई पाई एच कट रूट ओवर ऑफ m/2, l बाई पाई एच कट रूट ओवर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू ई एफ e to the power of -12 into d। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e to the power of -12 d का इंटीग्रेशन करो, e to the power of -12 प्लस 1, तो e to the power of +12 डिवाइडेड बाई प्लस, तो ऊपर 2 जाएगा, 2l बाई पाई एच कट रूट ओवर ऑफ m/2 और e to the power of +12 होगा तो इसका मतलब ef to the power of half। That's what I can say. That's what I can say. ये माइनस ऑफ आएगा या क्या आएगा उसको लेके थोड़ा तो फाइन। हाँ, ये टू दी पावर अगर हाफ आ रहा है, ये हमारा n है, फाइन। तो स्मॉल n इक्वल्स टू n बाई l, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1D, 1 डायमेंशन। तो ये अगर तुम्हारा है तो देखो पाई एच कट ई एफ टू दी पावर ऑफ हाफ पाई एच कट n बाई l, 2 नीचे जाएगा, वरना एक काम कर, से √2 से उसको काट तो √2 नीचे जाएगा, यहाँ पे m है तो रूट ओवर ऑफ 2m, पाई का रूट ओवर ऑफ 2m n बाई l। अब ई एफ टू द पावर ऑफ हाफ था, इसे स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे इस पूरी चीज का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज h कट स्क्वायर बाई 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर। h कट स्क्वायर बाई 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर। h कट स्क्वायर बाई 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर। That's all I'm getting। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, अगर हमें निकालना है कि एवरेज जो वैल्यूज हम लोग निकालते हैं यूजुअली, दैट इज एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इन 0 केल्विन इन 1D, तो E एवरेज क्या आ जाएगा, 1 बाई n इंटीग्रेशन 0 टू ई एफ g ऑफ E डी ई f ऑफ E इंटू एक्सट्रा किया आएगा। तो भाई साहब यहाँ पे देख लो कि g ऑफ ई डी, तो 1 बाई n को 1 बाई n रखो, f ऑफ E तो 1 हो जाएगा, g ऑफ ई डी जो था उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो एक e मल्टीप्लाई कर दो, तो l बाई पाई एच कट रूट ओवर ऑफ m/2, l बाई पाई एच कट
रूट ओवर ऑफ m बाई टू इंटीग्रेशन 0 टू ई एफ के साथ, वहाँ पे e टू द पावर ऑफ क्या था माइनस हाफ, इसके साथ एक मल्टीप्लाई करूंगा तो e टू द पावर ऑफ हाफ डी, ये हमारा बन जाएगा e टू द पावर ऑफ हाफ डी दैट इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, तो 2 बाई 3 1 बाई n l बाई पाई h कट m बाई 2 2 बाई 3 इंटू ई एफ टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा 3 बाई 2। हमें टोटल n का वैल्यू क्या पता है, 2l बाई पाई h कट रूट ओवर ऑफ m बाई 2 1 बाई n l बाई पाई h कट m बाई 2, यहाँ से एक हाफ चाहिए e टू द पावर ऑफ ef टू द पावर ऑफ हाफ, वो मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ef पड़ा रहेगा 1 बाई 3 ef बाई 3। देख ये जो 12 बाई पाई h कट आया है ना रूट ओवर ऑफ m बाई 2 ef टू द पावर ऑफ हाफ, ये हमारा n है, तो कैपिटल N कट गया, तो सिंपली 1 बाई थर्ड ef बचा है ef divided by 3, this is the average energy per electron, therefore total energy क्या होगा E total equals to n ef by 3, ये हमारा टोटल एनर्जी है। और अगर ये सब पता है तो बाकी चीजें तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है, लाइक व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ pf, what will be the value of kf, what will be the value of tf, finding velocity vf, ये सब चीजें तुम लोग निकाल सकते हो फॉर 1D। तो 1D 2D 3D में फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की जो सारी चीजें हैं हमने सारी चीजें यहाँ पे दिखा दी है। अगर कोई भी दिक्कत है तो वो बच्चा बता सकता है, अदरवाइज आई विल साइन ऑफ। टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस होल एंटायर क्लास, यू कैन टेल मी, बताइए कोई भी अगर डाउट हो आपको आप मुझे बता सकते हैं। हाँ यहाँ पे और एक फॉर्मूला मैं लिख देना चाहूँगा, जो फॉर्मूला थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, देख कि वहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग ऐसे बता सकते हो, लाइक अगर तुम्हारे पास दिया गया है फर्मी एनर्जी और की का वैल्यू अगर तुम्हें पता है तो तुम लोग सिंपली ऐसे करके निकाल सकते हो दैट कैपिटल N is equals to 2 into 4 by 3 pi kf cube divided by 2 pi by L, or L by 2 pi to the power of 3, 2 into L by 2 pi to the power of 3 into 4 by 3 pi kf cube. Capital N equals to 2 into L by 2 pi square into pi kf square. Capital N is equals to 2 into L by 2 pi into simply kf. That I can write. ठीक है, ये चीजें यहाँ पे थोड़ा बहुत जरूरी है, इसे तुम लोग को जानना पड़ेगा। और जो यहाँ पे तुम्हारा फर्मी ये जो kf का वैल्यू आया है ना तुम्हारा, that is 2 कैंसिल हो जाएगा, तो pi n by l, that's your kf equals to pi n by l, वो तो यहाँ से देख सकता था। kf equals to क्या होता है बता, kf equals to root over of 2m by h cut square, तो यहाँ पे 2m ef by h cut square, तो यहाँ पे तुम अगर ef का वैल्यू लिख देते हो, ef का वैल्यू कितना है h cut square by 2m pi square n square, तो यहाँ पे h cut square by 2m करूँगा, कैंसिल हो जाएगा, pi square n square, तो ये पाई n आ जाएगा, इसका वैल्यू पता है हमें, सिंपली आएगा पाई इंटू n। तो यहाँ पे देख लो kf का वैल्यू यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा, सेम आ रहा है, पाई इंटू कैपिटल N बाई L दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल पाई इंटू स्मॉल। तो ये है 3D के लिए, ये है 2D के लिए, ये है 1D के लिए,
ये फॉर्मूला भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहाँ पे रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Okay, you people said that the voice was very less. Okay, fine. Okay, from the next class we will see because the voice issue is there, I think. Okay, we will work on it. We will work on it.